أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آیت نمبر 78 جز نمبر 5 سورہ النساء. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج. اگر میں یہاں پہ میں ابھی آپ کو دوبارہ آیت کے شروع میں آ کے بتاتی ہوں. اینا اینا دیکھیے اینا یالین اینا ما تکونو یدرک. اب دیکھیے دال پہ کلکلہ کرنا ہے. رک اب جو را ہے یہ اس کے بعد رک کاف ہے, لیکن یہ کون سا کاف؟ جزم والا کاف نہیں پڑھا جا رہا, تشدید والا کاف پڑھا جا رہا ہے, کیونکہ تشدید بتا رہی ہے یہاں دو کاف ہیں. تو ایک جو حرف ہوتا ہے وہ پیچھے والے سے اپنا حرکت لیتا ہے, لیکن پیچھے والے کاف کے پاس چونکہ حرکت نہیں ہے, وہ سائلنٹ ہے, تو ہم را سے حرکت لیں گے. رک یود. اب دال پہ پہلے کلکلہ بھی کریں گے. یود رک. اب رک کو مل, ادھر دونوں کاف کو سختی سے پڑھنا ہے, لیکن یہ جو نظر آیا جزم کے ساتھ یہ نہیں, اگلا کاف یود یود رک کو مل رک, اور پھر کو مل موتو مو واولین موتو تاپش تو ولو لو ولو واولین تم نون ساکن کے بعد تا ہے, تو یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے, اخفا حقیقی ہو رہا ہے, غنہ کاملہ. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اچھا یہاں پر اگر ہم, جیسے میں پہلے بروج پہ رکی تھی, سانس آگے نہیں گئی تو میں وہاں پہ رکی, تو میں نے فی بروج ایسے کر دیا. کیوں؟ کیونکہ میں رکی تو جب میں نے جیم دو تھینک یو میں رکی ہوں, تو جیم کی جو دو زیریں تھی وہ دونوں زیریں میں نے روک دی تھی نا, میں نے یہاں پہ عارضی سکون کیا تھا. فی بروج ایسے اگر میں نے رک کی سانس لینے کے لیے, تو جیم کی میں نے دونوں زیر روک دیے, تو جیم خالی ہو گیا, جزم والا ہو گیا, سکون والا, تو پھر کلکلہ کرنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ کتب جد کے 5 جو حروف ہیں, یہ جہاں کہیں بھی اگر ہم ان کی حرکت کو روکتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے, کلکلے والے حرف بن جاتے ہیں. لیکن اگر ہم ان کو ملا کے پڑھیں گے تو کلکلہ نہیں ہوگا. فی بروج, یہاں پہ پھر ادغام ہوگا, جم غنہ ہوگا, اور یہ میم جو ہے مشدد ہے, 2 میم ہے. کون سا غنہ ہوگا یہاں پہ؟ اکمل غنہ ہوگا, بڑا غنہ ہوگا. غنہ کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو ناک میں چھپانے کا نام غنہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے بروج مشیدہ, مشیہ, پہلے شی اور پھر یا, دونوں یا کی آواز آنی چاہیے, اور پھر دہ آخر میں ہا کر دیا ہم نے. ہم یہاں رکے ہیں نا, تو تا دو زبر تین جو ہے, یہ گول تا جو ہے جس کو تا مربوطہ کہتے ہیں, جب ہم اس پر عارضی سکون کرتے ہیں تو یہ تا نہیں رہتا, ہا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی آواز تا کی طرح نہیں آئے گی, ہا کی طرح آئے گی. کس صورت میں؟ رکنے کی صورت میں. ملا کے پڑھنے میں اگر ہم ملائیں گے مثال کے طور پر ایسے فی بروج مشیدۃ, پھر وہ تن نہیں کریں گے, واؤ میں پھر ہمیں ادغام کرنا پڑے گا, تو ایسے ہو جائے گا. لیکن اگر ہم رکتے ہیں فی بروج مشیدہ, دہ آخر میں گلے میں آپ نے ہا کی آواز کو دکھانا ہے لازمی. ٹھیک ہے, توصیبہم سواد کو موٹا بھی کرنا ہے اور باتیں کلکلہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں یاد رکھنی ہیں. اور نون چونکہ ساکن ہے, یہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے, یہاں اخفا بھی ہے, اخفا حقیقی, اور پھر اس کے ساتھ جوڑ کے یاد رکھا کرے, اخفا حقیقی جہاں بھی ہوگا وہاں پہ غنہ کاملہ ہوگا. اکمل غنہ کہاں پہ ہوگا؟ نون مشدد میم مشدد, اور اخفا کے ساتھ کون سا ہوگا؟ سیکنڈ لیول کا غنہ کاملہ. تو پھر یہاں پہ ہم یہ جو کیا نا ہم نے, یہ غنہ بھی کیا, یہ جو ہم نے اخفا کیا اس کے ساتھ ہم نے غنہ بھی کرنا ہے. توصیب, دیکھیے ایک جو ورڈ ہے توصیبہم, اس میں اخفا بھی ہے, اس میں سواد کو موٹا بھی پڑھنا ہے, اس میں با پہ کلکلہ بھی کرنا ہے, اور ہم کو باریک طریقے سے پڑھنا ہے اظہار کے ساتھ. اظہار کے ساتھ, کیونکہ آگے جو ہے حسنۃ یقول, آگے ہے جو ہے حرف ہلکی ہے. جہاں پہ حرف ہلکی ہوتا ہے نا, وہاں پہ پیچھے جہاں پہ ہم کو ہم ختم کر رہے ہیں تو آگے حرف ہلکی ہے, تو یہاں پہ اظہار ہلکی ہوگا. اظہار کے ساتھ ہم پورا صحیح ہم نے اظہار کے ساتھ پڑھا. پھر ہے س ن
तो यहाँ पे इदगाम हो रहा है ना, तो अब इसको अलिफ नहीं जोड़ना, हा सा ऐसे नहीं करना है, हसन हसन, ठीक है। इसको आप पढ़ के देखिए, हसनतुन यक़ूलू, अब कू को मोटा करना है, लू को बारीक करना है, और इदगाम जो हो रहा है, इदगाम जो हो रहा है ना, नाकिस इदगाम यहाँ पे हो रहा है। तो कुछ या की आवाज आ भी रही है और कुछ नहीं भी आ रही, तो इस यहाँ पे इदगाम भी हो रहा है, इस इदगाम को नाकिस इदगाम कहते हैं, और यहाँ पर गुन्ना भी हो रहा है। हसनतुन यक़ूलू, कू को 2 हरकत, लू को 2 हरकत, लेकिन कू को मोटा, लू को बारीक, ये याद रखिए। हाज़िही, हा के ऊपर खड़ी जबर है, अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा, हा की आवाज सीने की तरफ जाती है, बारीक लफ्ज है। जाल जेर जी बारीक लफ्ज है। फिर हा खड़ी जेर ही, 2 हरकत खींचेगी। खड़ी जेर जो है ये या मद्दा के कायम मुकाम है, जितना हम या मद्दा को खींचते हैं ना, कितना खींचते हैं, 2 हरकत खींचते हैं, उतना ही खड़ी जबर खींचती है। और खड़ी जबर जो है वो अलिफ मद्दा के कायम मुकाम होती है। यानी अगर खड़ी जबर, जैसे हा के ऊपर खड़ी जबर है, अगर खड़ी जबर लगी हुई है तो आपने कितना पढ़ना है इसको, जितना आप अलिफ को पढ़ते हैं। और अगर खड़ी जेर लगी हुई है जैसे कि यहाँ पर, तो कितना पढ़ना है, जितना आप या को पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं या को, 2 हरकत पढ़ते हैं ना। मद्दा के जितने भी हरूफ हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, ये 3 हरूफ है ना, ये तीनों 2-2 हरकत खींचते हैं। इसी तरह खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, ये तीनों जो हैं इन्हीं के कायम मुकाम है। खड़ी जबर अलिफ मद्दा के कायम मुकाम है, खड़ी जेर या मद्दा के कायम मुकाम है, और उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मुकाम है। यानी जितना वाव मद्दा को पढ़ेंगे इतना उल्टा पेश को। और यहाँ देखिए, हाँ अब देखिए ये चीजें छोटा सा एक लफ्ज है ये, लेकिन ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको हाजे ही ऐसा कर देंगे, हाँ का भी हक अदा नहीं करेंगे, अलिफ के बराबर नहीं पढ़ेंगे, और हाजिर ही को भी 2 हरकत नहीं खींचेंगे, तो आपने नुकसान कर दिया ना। इसलिए इसको ध्यान से रखिए, हाज़िही मिन इंदिल्लाह। अब देखिए मिन, नून, नून साकिन आ गया, नून साकिन के बाद हरफे हल्की आ गया। आइन जो है हलक से बोलते हैं ना, हलक से पढ़ते हैं ना, आइन हरफे हल्की है। जब भी अगला लेटर इसके बाद नून साकिन के बाद अगला हर्फ जो है, अगर वो हर्फ हल्की हो यानी हलक से अदा होने वाला हो, तो फिर क्या होता है, इजहार हल्की, इजहार के साथ पढ़ते हैं। फिर मिन, अब देखिए पूरा पढ़ा ना, ना कोई आवाज में नाक में ले गई, ना मैंने कोई इख्फा किया, ना कुछ। मिन क्यों, आगे हरफ हल्की है, मैंने इजहार हल्की कर दिया इसको, इसलिए इसको इजहार हल्की कहते हैं कि अगला हर्फ जो है वो हरफ हल्की है। मिन, फिर देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, नून साकिन के बाद दाल है, तो यहाँ इख्फा होगा। इख्फा कौन सा, इख्फा हकीकी, और उसके साथ जॉइंट में गुन्ना कौन सा, गुन्ना कामिला। ये दोनों याद रखा करें। मिन थोड़ा सेकंड लेवल का गुन्ना भी हुआ, गुन्ना भी हुआ ना, कामिला गुन्ना। पहला कौन सा होता है, अकमल, वो तो नून मुशद्दद मीम मुशद्दद पे होता है, लेकिन इख्फा पे कौन सा होता है, सेकंड लेवल का। देखिए आवाज थोड़ी अंदर गई थोड़ी बाहर आई, लेकिन बारीक गुन्ना करना है, क्योंकि बारीक इख्फा करना है, क्योंकि उसके साथ अगला हर्फ जो दाल है वो बारीक है। अगर अगला हर्फ मोटा होगा तो इख्फा भी मोटा होगा, लेकिन इख्फा की आवाज बारीक रहेगी जब अगला हर्फ बारीक होगा। जिस तरह अब आइन को अलिफ की तरह नहीं पढ़ना है, एन को आइन की तरह पढ़ना है। दिल्लाही अगर मिला के पढ़ेंगे तो दिल्लाही, लेकिन अल्लाह का नाम में लाम जलाला नहीं होगा, क्योंकि दाल के नीचे जेर है। अगर पेश या जबर हो तो फिर लाम जलाला करते हैं, यहाँ नहीं करेंगे। और अगर रुकेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, दिल्ला, हाँ तक रुक जाएंगे, जेर को नहीं पढ़ेंगे। रुकने की सूरत ये है, मिलाने में पढ़ा जाता है। अब देखिए नून के बाद फिर ता आ गया, दोबारा अख्फा हो रहा है। तो सिब हम, स्वाद बोटा, बापे कलकला, हम तो सिब हम सही, सही ये सख्ती से जोड़ना है, तशदीद है, 2 या है, सही और फिर ये सय्यिअतुन, सय्यिअतुन, ता 2 पेश की तनवीन है, लेकिन आगे या पे तशदीद की वजह से तनवीन खत्म हो जाएगी, इदगाम हो जाएगा और गुन्ना हो जाएगा। सय्यिअतुन यक़ूलू, ऊ मोटा, लू बारीक, दोनों 2-2 हरकत खींचेंगे। हाज़िही, हाज़िही मिन इंदिक, वही रूल जो पीछे बता चुकी हूँ। हाँ 2 खड़ी हरकत है तो अलिफ के बराबर, और सब बारीक हुरूफ है। हाँ खड़ी जेर ही, 2 हरकत। मिन, नून साकिन के बाद आइन है, हरफ हल्की है तो इजहार किया। फिर आइन के बाद जो नून आ रहा है ये नून साकिन है, और साकिन नून के बाद दाल आ रहा है, यहाँ पे इख्फा होगा।
min दिख। अब जब रुकेंगे दिख हो जाएगा, काफ की जबर रोक देंगे, काफ पे रुक जाएंगे। फिर अगला काफ देखिए, कुल मोटा पढ़ा जाएगा। फिर अगला उसके बाद वाला जो हर्फ है कुल्लुम, ये बारीक पढ़ा जाएगा, इसलिए कि ये सारे बारीक हुरूफ हैं, लेकिन इसमें इदगाम भी हो रहा है। क्यों? मीम मुशद्दद भी है ना और तशदीद भी है। कुल्लुम गुन्ना हो रहा है, कुल्लुम बारीक तरीके से, कुल्लुम मिन इंदिल्लाह। मिन नून साकिन आइन हर पे हल्की इजहार किया हमने, ये इख्फा किया, मिन इंदिल्लाह, रुके हाँ के ऊपर, फमाली फमाली हाउलाइल कौमी ला यकादून यफ़क़हून हदीसा। हाँ उलाई के ऊपर देखिए खड़ी जबर भी है और ऊपर मद भी है, उसका पूरा हक अदा होगा। हाँ इस तरह पूरा पढ़ा जाएगा। हाँ लेकिन हाँ में बड़ा मुंह नहीं खोलना, जुबान को ऊपर नहीं लेके जाना, मोटा हो जाएगा, ये बारीक हर्फ है। और उसको बारीक रखने के लिए आपको मुंह को साइड वाइज खींचना है। हाँ उलाइल कौमी, ला को क्यों खींचा? एक तो अलीफ है उसके साथ, ऊपर मोटा मद भी है, उसका भी हक अदा करना है। अगर आपने नहीं खींचा और आपने जल्दी जल्दी हाँ उला, तो आपने क्या कुछ छोड़ दिया। देखे ना, ये बाज लोग कहते हैं हम बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने में सारी चीजें नुकसान हो जाती हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। अब हमजा जेर इल जो है इधर देखिए, इल कौमी ये जो है इधर जुड़ रहा है, इल कौमी, कौ वावेलीन भी है, काफ मोटा भी पढ़ना है, कौमी ला यकादून, ला इसको लॉ नहीं करना, मोटा नहीं करना, ला यकादून, दून सब बारीक हुरूफ है। यफ़क़हून, यफ फा को जमाओ के साथ, काफ को मोटा, हू को दो हरकत, नून को सिर्फ एक हरकत, यफ़क़हून हदीस, ये गले से पढ़ा जाता है हाँ, हदीस सा दो जबर सन जहां भी होता है, जहां हम रुकते हैं एक अलिफ पढ़ते हैं और एक जबर पढ़ते हैं, ये उसकी सूरत बदल जाती है रुकने पर, ठीक है। नेक्स्ट आयत देखिए, मैं स्वाबक, माँ के ऊपर देखिए जबर जो है मद है, उसका पूरा हक अदा करना है, बारीक पढ़ना है। मैं स्वाबक, स्वाब को मोटा पढ़ेंगे, गुस्सा मोटा जो है ना, गुस्सा देखते हैं किस, ये उन पांच सेवन हुरूफ में से ना, सेवन लेटर में से हैवी लेटर है, इसको मोटा पढ़ेंगे। और सो ऊपर नीचे मुंह खुलेगा, जुबान भी उठेगी, जिसमें जुबान उठती है ऊपर मुंह, ऊपर नीचे मुंह खुलता है, उसमें खुद ब खुद लेटर हैवी हो जाता है। मैं सो बैक है, जब बा और का पे आएंगी अपनी जुबान को नीचे रखेंगी और उसको बारीक तरीके से बैक है, एस बैक है। अब अगर इसको समझ के आप नहीं पढ़ेंगी, सारा का सारा मोटा कर देंगे तो सब बारीक हरूफ मोटे और सब मिक्स हो जाएंगे ना, ये नहीं करना है। मैं अस्वाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह, मिन नून साकिन के बाद हरफे हल्की आ गया, यहाँ हमने पूरा इजहार हल्की किया। फिर है जितना लिखा उतना पढ़ना है, इसको हासा नहीं कर देना, अलिफ नहीं लगा देना। हसन, यहाँ पे इख्फा हो रहा है, ता दो जेर तीन की तनवीन है, लेकिन आगे फा आ गया। हसन इख्फा और गुन्ना कामिला, हसन और इख्फा जो है बारीक, क्योंकि फा जो है बारीक लेटर है। हसन, ठीक है। फमीनल्लाह, अगर रुकेंगे तो फमीनल्लाह, ऐसे करके अल्लाह के नाम में जो लाम है उसको हैवी करके पढ़ेंगे, लाम जलाला कहलाता है। उसकी शर्त यह है कि अल्लाह का नाम आने से पहले अगर जबर होगी तो, और चूंकि हमने यहाँ आरजी सुकून किया तो मीनल्लाह हाथ पे रुक जाएंगे, और अगर मिला के पढ़ेंगे तो फमीनल्लाहि वमा असाबक, इस तरीके से, ठीक है। मिला के पढ़ने में जेर भी पढ़ी जाएगी। वह मैं बारीक हुरूफ है, ऊपर मद भी है, अलिफ मद्दा भी है, वो पढ़ते हुए आगे आएंगे। असाबक, असाबक सौद को मोटा, बक दोनों बारीक लेटर है। सय्यिअतिन फमिन फमिन नफ्सिक, अब देखिए इसमें सारे रूल आपको नजर आएंगे, बहुत सारे रूल नजर आएंगे। नून साकिन के बाद सीन है, सबसे पहले इख्फा हो गया, इख्फा हकीकी, और कौन सा इख्फा? बारीक, क्योंकि आगे सीन है। और इख्फा हकीकी के साथ गुन्ना कौन सा होगा? कामिला। सय्यिअतिन फमिनन नफ्सिक, अच्छा सही, या को दो दफा पढ़ना है इसलिए कि तशदीद है, इख्फा करने के बाद हमने या को दो दफा पढ़ा, फिर हमजा जबर आ, फिर ता दो जेर तीन है,
तनवीन के बाद फा आ रहा है, यहाँ भी इख्फा होगा कामिला गुन्ने के साथ। सय्यअत बारीक इख्फा के बाद फिर बारीक फमीनन, आगे नून साकिन के बाद नून मुशद्दद आ गया ना, तो यहाँ पे इदगाम हो रहा है, यहाँ पे गुन्ना अकमल होगा, बड़ा गुन्ना होगा। फमीनन नफ्सिक, नफ फा को जमाओ के साथ और बारीक तरीके से सिक, नफ्सिक, इस तरीके से काफ की जबर को रोक देंगे। वअरसलनाका, क्या काफ जबर क्या, इसको नून जबर, नून खड़ी जबर की वजह से खींची है ना, काफ को नहीं खींचना। रॉ इसलिए मोटा पढ़ा गया कि उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है, उसकी उस जबर की वजह से रॉ भी मोटा हो गया, क्योंकि रॉ के पास अपना कोई नहीं है ना हरकत, तो वो पीछे वाली हरकत से मिलेगा, तो वो हरकत जबर है, इसलिए रॉ हो गया, मोटा करके और। लेकिन आगे वाले सारे लेटर बारीक भी करने हैं, जमाओ के साथ भी। सल सल न लिन्नासी रसूला, लिन्नासी, ये जो गुन्ना हुआ ना लिन्नासी, ये अकमल गुन्ना है, नून मुशद्दद है, ये लाजमी करना है क्योंकि यहाँ दो नून है। फिर सीन जेर सी एक हरकत है, एक हरकत पढ़ा जाएगा, लंबा नहीं खोचेंगे। रॉ मोटा होगा, रा पे जबर है, रसू सू दो हरकत और यहाँ पे तनवीन है, तो यहाँ पे एक अलिफ के और जबर के साथ पढ़ेंगे रसूल। वकफा बिल्लाहि शहीदा, वकफा, फा को दो अलिफ के बराबर कैफा, लेकिन बारीक मुंह को नीचे रख के साइड बाइस खींच के, ऊपर नीचे नहीं, वकफा ऐसी नहीं। वकफा बिल्लाहि, ये भी बारीक क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले जेर है। बिल्लाहि शहीदा, शहीद हाथ सीने वाला है, ठीक है, और दो हरकत खींचेगा, ही हा या जेर ही, और फिर एक अलिफ एक जबर, शहीद। यहाँ पर हमारी ये आयत नंबर 79 कंप्लीट होती है। अगली आयत पर भी छोटी आयत है, साथ चलते हैं, 80 पे इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। फिर देखिए मई, यहाँ पे इदगाम हो रहा है, आगे इदगाम में या के ऊपर तशदीद है ना, तो मीम जाके या के साथ जुड़ रहा है, और लेकिन नून की आवाज कुछ कुछ आ रही, कुछ कुछ, इसको इदगाम नाकिस कहते हैं ना। मई युतिइर रसूल, मई युति, तो मोटा पढ़ना है, चाहे वो जेर के साथ है लेकिन वो मोटा हर्फ है। मई युतिइर, आइन को आइन की तरह, इर रॉ, फिर इर जो है आगे रॉ जो है तो तशदीद है ना, तो दो आवाज रा की आनी चाहिए, सख्ती से जोड़ के पढ़ना है, रा को मोटा भी पढ़ना है। मई युतिइर रसूल, रसूल, लाम जबर ला, बस ला को ज्यादा ला ऐसे नहीं करना, उसके साथ अलिफ है ही नहीं, अपनी तरफ से अलिफ नहीं लगाना। ये चीजें आपने समझनी है, सुननी है, प्रैक्टिस करनी है, फिर अपनी आवाज को सुनना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फक़द, फक़द तो अल्लाह, अगर अगर मिला के पढ़ेंगे तो अल्लाह, और अगर रुकेंगे तो फक़द। पहले फक़द को देख लें, फा में फा बारीक, कॉफ मोटा, दाल पे कलकला, फक़द हिला देना है, कलकला करना है, क्यों? कुतुब जद, याद रखिए कुतुब जद, कॉफ तो बा जीम दाल, ये 5 हरूफ ऐसे हैं, जब भी ये जज्म के साथ हो तो इन पे कलकला होगा। फक़द, काफ मोटा, दाल पे कलकला, क्योंकि कुतुब जद का लेटर है और जज्म के साथ है। फक़द, तो अब हिल गया ना यहाँ पे। फिर देखिए तो, बारीक, तो मोटा क्योंकि हर्फ मोटा है ना, फिर आइन बारीक, लेकिन फिर आगे लाम जलाला, अल्लाह के नाम से पहले जबर आ रही है, तो आप देखिए कितना उतार चढ़ाव इसके अंदर। तो अल्लाह, अगर सिर्फ लाम को जलाला करना है, मोटा करना है, इसलिए कि उससे पहले जबर है, लेकिन अगर यहाँ पर हम रुकेंगे, आरजी सुकून करेंगे, तो हाँ की आवाज तो पढ़ेंगे, जबर को नहीं पढ़ेंगे। कैसे? ऐसे करके हाँ की आवाज आपने गले में दिखा के रुक जाना है। ये इख्फा हो रहा है, इख्फा हो रहा है, इख्फा हकीकी, क्यों? नून साकिन के बाद ता आ रहा है इसलिए, और इख्फा बारीक भी हो रहा है, ता बारीक लफ्ज है इसलिए, और गुन्ना हो रहा है कौन सा? कामिला, सेकंड लेवल का। लाम पे देखिए तशदीद है ना, तो वेल, तो एक आवाज तो ये हो गई, और दूसरी ला, दोनों लाम पढ़े गए ना, और कितना खींचेंगे? एक अलिफ के बराबर, क्यों? ऊपर खड़ी जबर है, क्योंकि खड़ी जबर अलिफ के बराबर पढ़ी जाती है।
ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فما बारीक पढ़े जाएंगे, उसके ऊपर मद है, उसका हक अदा होगा. और रा मोटा पढ़ा जाएगा. और सेल सीन और लाम बारीक पढ़े जाएंगे. फिर नून बारीक भी पढ़ा जाएगा और अलिफ के बराबर खींचेगा, ऊपर खड़ी मद है इस वजह से. और सेल न क्या का को नहीं खींचेंगे, ज्यादा बारीक पढ़ेंगे, बारीक हर्फ है लेकिन सिर्फ जबर के साथ. और सेल न और सेल न क्या, बस काफ जबर क्या, ज्यादा उसको का की आवाज को क ऐसे जैसे ना किया इस तरह का नहीं करेंगे. इसके साथ अलिफ नहीं है ना. नून के साथ देखिए अलिफ है, काफ के साथ अलिफ नहीं है. इधर आवाज को रोकना है और अगले हर्फ पे जाना है. अलैहिम, आइन को ऐन की तरह, अलिफ की तरह नहीं. अलैहिम लई, इसको पूरा अदा करना है. याइलीन है ये. याइलीन की पहचान क्या है? या खुद साकिन होता है, उससे पहले वाले हर्फ पर जबर होती है, उसको कहते हैं याइलीन. और लीन का मतलब होता है मोड़ पैदा हो जाता है आवाज में, जैसे लाम से लई मोड़ हो गया ना. तो ये पूरा अदा करना है. अलैहिम, हिम हिम जो हमने इजहार के साथ पढ़ा. फिर उसके बाद अगला हर्फ देगा हरफे हल्की है ना. हरफे हल्की होता है तो इजहार हल्की हो जाता है, खुल्लम खुल्ला इजहार हो जाता है. अलैहिम हफीज़ो, हफी दोनों बारीक लेटर है, लेकिन आगे गौ जो है ये मोटा लेटर है और यहाँ रुक रहे हैं और दो जबर की तनवीन है, उसकी वजह से एक अलिफ और एक जबर के साथ पढ़ा जाएगा. गले से फी दो हरकत और ज़ौ मोटा पढ़ा जाएगा लाजमी, क्योंकि खुस्सा दिक्तिन किस में तो ज़ौ मोटे हुरूफ में आता है. ये हर सूरत मोटे हुरूफ 7 हैवी लेटर्स खुस्सा दिक्तिन किस के जो 7 लेटर्स हैं हर हाल में मोटे ही पढ़े जाएंगे. यहाँ पर हमारी सूरह निसा की आयत नंबर 80 मुकम्मल होती है. इंशाल्लाह जितने भी आज सबक हमने पढ़ाए हैं इन सबको भी और पिछले असबाब को भी अच्छे से पढ़िएगा और कुरान पाक खोल कर पढ़िएगा, सुनिएगा और फिर उसकी अपनी आवाज में इन आयात को पढ़कर इन तमाम रूल्स को मद्देनजर रखते हुए रिकॉर्डिंग कीजिएगा. रिकॉर्डिंग के बाद आप खुद उसको सुनिएगा कि आपने किन 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 हुरूफ को मोटा किया, किन को बारीक रखा, कहाँ आपने अख्फा किया, कहाँ आपने गुन्ना किया, गुन्ना कहाँ बड़ा करना है, कहाँ अकमल, कहाँ कामिला, कहाँ आपने आवाज को रोक देना है, पॉज करना है, ता को हा में बदलना है और कहाँ आपने मद का हक अदा करना है. ये आप कर रहे हैं या नहीं. जब आप खुद अपनी आवाज को सुनेंगी इंशाल्लाह तो आपको अपनी गलतियां खुद दिखाई देंगी. फिर आप उन गलतियों को अपनी कॉपी पर लिखिए. लिखने के बाद आप दोबारा आयत को पढ़िए और फिर चेक कीजिए, नोट कीजिए और आवाज को रिकॉर्ड कीजिए. सुनिए कि आपकी गलतियां दूर हो गई कि नहीं. अगर आपने इस मेहनत के साथ और मेहनत के साथ तलब रखी तो इंशाल्लाह आपका कुरान बहुत जल्द बहुत अच्छा हो जाएगा. लेकिन अगर मेहनत नहीं की तो सिर्फ तलब से क्या होगा. आपको तलब के साथ मेहनत भी रखनी होगी और हर कुरान के एक एक हर्फ को पढ़ने की 10-10 नेकियां हैं. जब आप सीखेंगी, बार बार पढ़ेंगी, आपको इसका बहुत ज्यादा अजर सवाब होगा इंशाल्लाह. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, मुझे और पूरी क्लास को, हमारी पूरी क्लास को, सभी को ही बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला बनाए. इसी के साथ इस क्लास से इजाजत चाहती हूँ. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. इंशाल्लाह नेक्स्ट